Hello guys, this is Hitesh Tripathi and I'm your instructor for this whole playlist C++ from basic to advanced. And in today day 21 of this playlist, we are going to see what are unordered sets in STL C++. Okay, and then we will see set versus unordered set. I mean, when we have to use set versus when we have to use unordered set. Okay, and what are the main differences, and then we will see some example programs so that we can get the idea that how we have to write the syntax and all. Okay, fine. Before that, let's see what Newton School is. So Newton School is an e-learning platform. Okay, they provide you training for being a full stack developer by teaching you different programming languages, web development, front end and back end, both different core subjects. Okay, so everything, a complete package for being a full stack developer. Okay, and then they will also get you placed in these companies like Dream 11, Topper, ThoughtWorks, and Meesho, Motorola, 7-Eleven, Unacademy. Okay, so they have tie up with almost 300 companies of India. So you just need to check their pay after placement program. Okay, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, so just come to their website newtonschool.co, check their pay after placement program. Okay, and get the most out of it. And these days they also have a new initiative known as Launchpad, under which they are providing you everything for free. You just need to come to their website, sign up under their website, and start learning for free. There are different courses for different languages: Java, C++, Python. They are object oriented programming and different core subjects: DBMS, OS. Okay, and different web development, MERN stack, everything. So you just need to come, sign up in their website and start learning for free. And you will also get certificates. Okay, and you can also practice here. There are quizzes and problems from different subjects. So just come and check their both pay after placement and launchpad initiative. Fine. So before heading towards our next video, today's video, let's see that I'm making a C++ tutorial from basic to advanced playlist also, where I am uploading one video every day. So you just need to come to YouTube channel Code Kitchen Newton School, subscribe this channel and bookmark this playlist. Okay, so till now we have learned all the basics of C++. Okay, and now we are heading towards competitive programming, STL in C++ and data structures. So bookmark this playlist for updates. Now our today's video. So in today's video, as I said, we are going to learn what are unordered sets. So अगर हमें मैप, अगर हमने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं इस चैनल में, ठीक है, दैट इज ऑफ मैप, अनऑर्डर्ड मैप. ओके, एंड इन जस्ट प्रीवियस वीडियो इन डे 20 आई हैव टॉट यू ऑर्डर्ड सेट, ओनली सेट. ओके, तो मैंने उस दिन सेट बताया था. तो अगर हमें मैप और अनऑर्डर्ड मैप से कुछ पता चलता है कि मैप में क्या होता है, हर चीज ऑर्डर्ड होती है, की वैल्यू पेयर. ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, सिंपली अनऑर्डर्ड होती है, कोई एक सिमिलर ऑर्डर नहीं होता, लाइक इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. फाइन. तो सेम इन अनऑर्डर्ड सेट एंड सेट. ठीक है, सेट में हमारा क्या होता है, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज हमारी ऑर्डर्ड होती है, आई मीन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. फाइन. सेम इन unordered set, what we have is we have everything same. हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं सेट में. ओके, एलिमेंट्स होते हैं किसी भी डेटा टाइप के. ठीक है, सारे के सारे फंक्शन सेम होते हैं. ठीक, बस एक कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस होता है. क्या, इसमें जो वैल्यूज हैं वो ऑर्डर्ड नहीं होगी. ऑर्डर्ड इन द सेंस सॉर्टेड नहीं होगी. फाइन. तो अगर मैं, ये मेरा एक अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, और अगर मैं इसमें मैं क्या करूं, अगर मैं एक अनऑर्डर्ड सेट लूं, ठीक, ये हमारा अनऑर्डर्ड सेट है और ये है सपोज यूएस. ओके, एंड आई हैव टू इंसर्ट सम एरे इन दिस, लाइक a is equals to 1 5 2 3 1. ठीक है, तो अब अगर मैं ये सारे एलिमेंट्स इस अनऑर्डर्ड सेट में डालूं तो ये क्या बनेगा, मैं ये पहले देखता हूँ. ठीक है, 1 5 2 3 मेरे अकॉर्डिंग, या फिर अनऑर्डर्ड सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये अनऑर्डर्ड सेट कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, अब ये ऐसा बना है, इससे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर देते हैं. फाइन.
तो पहली चीज हमने क्या देखी, कोई भी चीज ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, दैट इज पहली कैरेक्टरिस्टिक अनऑर्डर्ड। यू से नो सॉर्टिंग, यू कैन से नो सॉर्टिंग। फाइन, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वन हमारा एरे में तो 2 बार आया था, बट अनऑर्डर्ड सेट में खाली 1 बार आया। दैट मीन्स कि यूनिक वैल्यूज एज सेम एज सेट, जैसे कि हमारा सेट में होता था, सारी की सारी वैल्यूज जो होती थी यूनिक होती थी। फाइन फाइन, तो अनऑर्डर्ड सेट हमें पता चल गया कि 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है। फाइन, अब इसका थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ठीक है, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमें कब यूज करना है सेट और कब यूज करना है अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड सेट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, हमारा सेट जो होता है वो, अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री या फिर हैशिंग और हैश सेट नहीं पढ़ा है, तो जस्ट फॉर कॉम मैं एक बहुत सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, वो समझ लो। जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है, ट्रीज की हेल्प से बना होता है, ठीक है, कुछ सेल्फ बैलेंसिंग। ये इंटरव्यू में आ सकता है क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर। जब हम डीएसए देखेंगे तो हम डीएसए में भी ये डीप में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इंप्लीमेंट होता है ये सब ट्रीज, तो हमें बहुत सिंपल से समझ में आ जाए। सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री, ठीक है, तो जो सेट और मैप होते हैं ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री की हेल्प से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज में। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमें ये क्या चाहिए होते हैं, ऑर्डर्ड, ठीक है, और ऑर्डर्ड लेने के लिए हमारा सेल्फ बैलेंसिंग ट्री बहुत हेल्प आता है, बहुत हेल्प करता है ऑर्डर्ड बनाने के लिए, और ऑर्डर्ड में जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी लेस रहे, इसलिए हम इनको सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फाइन, अब जो हमारे अनऑर्डर्ड, अब जब हम अनऑर्डर्ड बना रहे हैं, ठीक है, सेट और मैप अनऑर्डर्ड बना रहे हैं, इट मीन्स कि हमें बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्रीज की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड तो चाहिए नहीं, तो हमें सॉर्टेड वे में कुछ चाहिए नहीं, तो हम अनऑर्डर्ड चीजों को, दैट इज हम अनऑर्डर्ड मैप का देख चुके हैं, हम अनऑर्डर्ड सेट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम अनऑर्डर्ड सेट को ट्रीज की हेल्प ना लेने की वजह से हम सिंपली इनको हैशिंग से बना लेते हैं, ठीक है, हम इनको किसकी हेल्प से बनाते हैं, हैश से। तो अनऑर्डर्ड सेट, आप अगर अनऑर्डर्ड सेट डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो यूज हैश टेबल, ओके। और हैश टेबल में एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि होती क्या है। तुम क्या करते हो, तुम सारी एक कंटेनर टाइप बना लेते हो, ठीक है, उस कंटेनर टाइप में तुम्हारे पास कुछ इंडेक्सेस होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू 1000, मान लो तुमने 1000 साइज का बनाया, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, एक हैश फंक्शन डिफाइन करते हो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे हैश फंक्शन की वैल्यू ले ली है n मॉडुलो 10, ठीक है, हैश फंक्शन की वैल्यू है हैश फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू n मॉडुलो 10। अब सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे स्टोर करनी है, दैट इज 10 20 30 0 एंड 50, ठीक है। अब मुझे ये एरे अगर स्टोर करनी है, तो मैं इसको अपने हैश फंक्शन में कैसे डालूंगा, अपनी पहले वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर हैश टेबल निकालूंगा, और फिर उसको उस करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के वहां पे वैल्यू में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट की अगर 10 की मैं करस्पॉन्डिंग हैश फंक्शन निकालूं, हैश फंक्शन से वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, 0, तो मैं यहाँ पे 10 डाल दूंगा, ठीक है, 10 मॉडुलो 10 0। 20 के लिए 20 मॉडुलो 10 0। अब हुआ क्या, 20 मॉडुलो 10 0 हो गया, तो यहाँ पे पहले से 10 है, ठीक है, तो मैं 20 पे यहाँ पे डाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा कि जो नेक्स्ट खाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है, खाली बॉक्स मिलेगा जो भी नेक्स्ट, मैं वहां पे 20 को डाल दूंगा, ठीक है। तो इन द सेम वे हम ऐसे ही करते हैं हैश टेबल में, ठीक है। और अब मैंने ये मॉडुलो 10 लिया था, ठीक है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग हैश फंक्शन को चेंज कर सकता हूँ, और मैं कुछ ऐसा हैश फंक्शन लूंगा कि ये जो हमारे कोलिजन हो रहे हैं, दैट इज 10 में हमने 20 डाला तो वो भी कोलाइड हो गया है ना,
तो ये जो हमारे कोलिजन्स हो रहे हैं ये ना हो, मैं कुछ ऐसा हैश फंक्शन बनाऊंगा और इसी का यूज करके कुछ अनऑर्डर्ड सेट तुम्हारे बनते हैं। ठीक है, कोलिजन को मिनिमाइज करने के लिए कोई हैश फंक्शन लिया जाता है जिससे कोलिजन कम से कम हो और उसके वजह से एक कंटेनर बना लिया जाता है और उसको करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स के उसमें स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, अब तुमने अनऑर्डर्ड सेट तो बना लिया, ठीक है, बट होता क्या है, अगर तुम्हारा सपोज बहुत ज्यादा कुछ डेटा सेट है, ठीक है, 10⁶ वैल्यूज तुम्हें स्टोर करवानी है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो प्री डिफाइंड अनऑर्डर्ड सेट है उसमें कोलिजन्स बढ़ जाए। ठीक है ना, कोलिजन्स अगर बढ़ जाएंगे तो तुम क्या करोगे कि तुम्हें बार बार बॉक्स भरे हुए मिलते जाएंगे और तुम्हें नेक्स्ट एम्प्टी बॉक्स के लिए सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट एम्प्टी बॉक्स के लिए सर्च करते करते तुम्हें काफी ज्यादा ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड सेट किस केस में फेल हो जाते हैं, जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फॉर लार्ज डेटा सेट्स यू कैन से फाइन। नाउ हमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता चल गया। अब हम अनऑर्डर्ड सेट का सिंटेक्स वगैरह सब देखते हैं और फिर अपना मेन टॉपिक सेट वर्सेस अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो सिंटेक्स सिंपल मैंने एसटीएल के लिए बता दिया था कि क्या होता है। सबसे पहले लिख दो अनऑर्डर्ड सेट, फिर दो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी तुम्हें स्टोर करने वाली उसका डेटा टाइप और आगे नेम। ठीक है, सारे के सारे फंक्शंस सेम होते हैं। ठीक है, जो यूज होता है और नेम होता है सारे के फंक्शंस का सेट के जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सेट की वीडियो नहीं देखी देख लो, मैं फालतू में दोबारा यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सेट की वैल्यू एक बार चेक करो और सारे फंक्शंस एक बार चेक कर लो कि क्या यूज होता है। इनिशियलाइजेशन तुम्हारा सिंपली सेट के जैसा ही होता है। ठीक है, तुम्हें कोई भी वैल्यू अगर जैसे मान लो यूएस है और उसमें मुझे जीरो की मतलब सेट में अपने वैल्यूज डालनी है तो मैं सिंपली पुट कर सकता हूँ उतने कंटेनर में इंसर्ट का हेल्प करके। ठीक है, फाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऑलरेडी बता दी तुम्हें, अनऑर्डर्ड होते हैं, नो सॉर्टिंग होती है और यूनिक वैल्यूज होती है। ठीक है, नाउ यूज अभी हम सेट और अनऑर्डर्ड सेट के साथ देखेंगे। हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट्स इन अनऑर्डर्ड सेट। तो अगेन जैसे हम सेट में एक्सेस करते थे वैसे ही अनऑर्डर्ड सेट में एक्सेस करेंगे। सारी थिंग्स सेम है। ठीक है, मेथड फंक्शन सब कुछ सेम है, बस कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है। फाइन, सेट और अनऑर्डर्ड सेट में कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है। अब अनऑर्डर्ड सेट में एक बार मैं और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे करते हैं। या तो तुम अनऑर्डर्ड सेट का इटरेटर ले लो। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें सिंटेक्स लिखना पड़ेगा अनऑर्डर्ड सेट इंटीजर टाइप मान लो स्टोर करवा रहे हो, दो सेमीकोलन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इटरेटर। ठीक है, अब तुमने ये इटरेटर ले लिया, अब तुम इटरेटर को फॉर लूप में यूज कर सकते हो। फॉर आईटी मान लो तुमने बनाया us.begin से चला रहे हो। ठीक है, और कब तक चला रहे हो इसको, जब तक इटरेटर तुम्हारा us.end के इक्वल नहीं हो जाता, है ना। और बार बार तुम क्या करोगे, इटरेटर में प्लस प्लस करते जाओगे। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है, तो बहुत बड़ा सा है, हम इसको क्यों यूज करें, काट देते हैं। हम सिंपली क्या यूज करेंगे, ऑटो कीवर्ड। ठीक है, हम फॉर लूप लगाएंगे, ऑटो इटरेटर सेमीकोलन और अपना यूएस। अब मेरा क्या करेगा, जो इटरेटर है वो सारी की सारी वैल्यूज में अपने में अनऑर्डर्ड सेट में ट्रैवर्स करेगा और इटरेटर में मेरी वैल्यूज जो भी हैं वो आती जाएंगी। ठीक है, फाइन। अब हमें ये भी पता चल गया हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट्स इन अनऑर्डर्ड सेट। अब मैं एक बार में अगर फंक्शंस तो मुझे पता है कि सारे के सारे सेम होते हैं। ठीक है, उनका यूज, कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस आया, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, वो किस वजह से आया, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। इम्प्लीमेंटेशन इनका कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन हैशिंग का यूज करके। ठीक है, तो अब हैशिंग का यूज करके इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी में भी डिफरेंस आएगा। तो वो हम सिंपली देख लेते हैं। इंसर्शन इन ओ ऑफ वन एवरेज। ओ ऑफ वन कैसे, तुम्हें मान लो कोई भी वैल्यू है 26, तुम्हें ये अपने हैश टेबल में इंसर्ट करनी है। ठीक है, हैश टेबल या अनऑर्डर्ड सेट। तो ये सिंपली क्या करेगा, हैश फंक्शन के पास जाएगा, 26 की कोई वैल्यू निकालेगा, दैट इज 3। ठीक है, 3 को तुम्हारे थर्ड इंडेक्स पे डाल देगा हैश टेबल में। अगर ये हैश टेबल में थर्ड इंडेक्स जो है वो एम्प्टी है ना, तो ये सारा ऑपरेशन खाली ओ ऑफ वन में हो गया, ये तो समझ में आ गया। बट इन केस
अगर तुम्हारा यहाँ पे 3 एम्प्टी नहीं है, फुल है, नेक्स्ट एम्प्टी वैल्यू, नेक्स्ट एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। तो ये जब तक एम्प्टी बॉक्स ढूंढता रहेगा जब तक तुम्हारे 26 के लिए कुछ मिल नहीं जाता। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि O of 1 इज फॉर एवरेज केस, जब तुम्हारे नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत कम है, ठीक है, तो O of 1 मीन्स कांस्टेंट टाइम में ये ढूंढ लेगा। बट अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत बढ़ जाते हैं तो फिर यहाँ पे दिक्कत कर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एम्प्टी O of 1 में हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा सिंपली हैश टेबल का साइज चेक कर लेगा, कुछ भी अनऑर्डर्ड सेट का साइज चेक कर लेगा, ठीक है। बिगिन फर्स्ट एलिमेंट इन द अनऑर्डर्ड सेट, वो भी सिंपली पता चल जाएगा, एंड लास्ट एलिमेंट वो भी सिंपली पता चल जाएगा। फाइंड, फाइंड के लिए अगेन तुम्हारा सेम चीज होती है ना। O of 1 सिंपली अगर हैश टेबल में तुमने चेक किया, ठीक है, हैश टेबल में तुम 26 को चेक कर रहे हो, ठीक, 26 की वैल्यू आई तुम्हारी 3, तुम सिंपली क्या चेक करोगे, थर्ड इंडेक्स पे तुम्हारी कौन सी वैल्यू है, 26 है अगर, तब तो तुमने क्या किया, तुमने O of 1 में सिंपली बता दिया हाँ 26 मिल गया मुझे और वो थर्ड इंडेक्स पे है। बट अगर हमने इंसर्शन के टाइम पे 26 को कहीं और पे डाल दिया था, कोई और एम्प्टी बॉक्स में, तो वहां पे फाइंड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो फाइंड की कॉम्प्लेक्सिटी हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि एवरेज केस के लिए तो O of 1 है, बट अगर कोलिजन्स बढ़ जाते हैं तो ये O of n भी हो सकती है लीनियर टाइम। मुझे सारी की सारी हैश टेबल में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, O of n, सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे अलग अलग जीरो करने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर हटाने पड़ेंगे। फाइन, तो अब बहुत सिंपल सा हमें सेट और अनऑर्डर्ड सेट में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। ये भी मैप और अनऑर्डर्ड मैप की तरह ही होते हैं। तुम्हें सिंपली क्या चेक करना है, अगर तुम सेट अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, मींस n के कंस्ट्रेंट्स देखो नंबर ऑफ वैल्यूज के, अगर वो 10⁵ जैसे कुछ है तो तुम n log n ऑपरेशंस अफोर्ड कर सकते हो, देन ऑलवेज यूज सेट। बट अगर n की कोई बहुत छोटी सी वैल्यू है जहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत कम पॉसिबल है, लाइक फॉर n इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है, या फिर तुम सेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस केस में वो प्रॉब्लम का ऑथर तुमसे अनऑर्डर्ड सेट ही यूज करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो गेस इट समथिंग दिस वे, ठीक है, फाइन। नाउ अब हमें क्या देखना है, इसका एग्जाम्पल। तो हम सिंपली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और हमें सिंपली क्या देखना है, हमने लास्ट वीडियो में सेट का यूज देखा था, देखो तो सेट मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया था और सारी की सारी वैल्यूज सॉर्टेड वे में मिली थी। अब अगर मैं क्या करूं, इसी को अनऑर्डर्ड सेट कर दूं, PERED, ठीक है, और मैंने सिंपली क्या किया, सेम चीज की, मैंने अनऑर्डर्ड कर दिया मैंने बस, ठीक है। देखो कोई भी वैल्यू सॉर्टेड नहीं है, स्कूल न्यूटन एच टी, ठीक, तो जैसे सबसे पहले ये मिला मुझे अनऑर्डर्ड सेट, कोई भी वैल्यू सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, और सारी की सारी वैल्यूज एक बार आई, ये तुम्हें याद में आ गया होगा कि सारी की सारी वैल्यूज यूनिक है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग अनऑर्डर्ड सेट के। अब तुम्हारा असाइनमेंट क्या है, सारे के सारे फंक्शंस जो है एक्सप्लोर करो, किसी में भी कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगेन गो टू न्यूटन स्कूल वेबसाइट newtonschool.co, check their pay after placement program and launchpad initiative and get the most out of it. They are providing you free courses also, fine, and they are providing you placement training also, which is good only for you, okay, they don't need anything from you, fine. And again go to this C++ tutorials playlist and subscribe this channel code kitchen newton school if you haven't done yet, and bookmark this playlist. Thank you guys for watching.